جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کچھ دنوں کے وقفے کے بعد دوبارہ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور وقت ضائع کیے بغیر جو ان سے پیچھے تسلسل سے جو بات چیت چل رہی ہے اسی میں اب ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ ہے، بہرحال وہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں اگر وہ ہے بھی تو یہ جانے والی ہے، یہ جا رہی ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو جانے والی ہے ابھی تک باتوں میں ہے یا اس سے آگے بھی بات بڑھی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو میں مانتا ہوں، کیونکہ میں پاکستان کے دستور کے تابع ہوں۔ پاکستان کے دستور کے تابع جو الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں دھاندلی کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی ہے، تو اس کی ڈی جے اور حیثیت کو تو ظاہر ہے سبھی مانتے ہیں۔ ہاں، اس کی سیاسی حیثیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے، وہ اس کی وجہ الیکشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار کہا تھا کہ اس حکومت کے ہاتھ سے وقت کی ریت سرک رہی ہے، تو اس وقت آپ سب دیکھ رہے تھے کہ بڑے اچھے اچھے واقعات انٹرنیشنلی ہو رہے تھے، کوئی کس سے مل رہا تھا، کوئی کس سے مل رہا تھا، کوئی علیحدگی میں مل رہا تھا، کوئی اکٹھا ہو کے مل رہا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی، آپ ذرا دیکھیے ان دنوں میں کتنی صورتحال تبدیل ہوئی۔ آپ نے مشرقی اور مغربی بارڈر دونوں پہ ہمارا تناؤ موجود ہے۔ مئی میں ہم نے مشرقی بارڈر پہ لڑائی کی، بھارتی جارحیت کا جواب دیا، اور پھر اب ہمارا جو ہمیشہ سے دوست سمجھی جانے والی حکومت تھی افغانستان کی، اس کے ساتھ بھی ہم لڑ پڑے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ انٹرنلی آپ دیکھ لیجئے، انٹرنلی ٹی ایل پی کا جو احتجاج تھا اس کو روکنے کے لیے حکومت کی کوئی کاوش کامیاب نہیں ہوئی، اور میری معلومات یہ ہیں کہ ایک درجے میں تھا کہ وہ کچھ ان کے مطالبات تھے جہاں سے وہ واپس بھی جا سکتے تھے، لیکن بندوق کو استعمال کیا گیا۔ جب بندوق استعمال کرنے لگے حکومت، تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا سیاسی جواز کھو دیا ہے، اور اب یہ صرف طاقت کے زور پر لوگوں پر مسلط ہے۔ تو ایک تو اس حکومت نے اپنا خود جو تاثر ہے وہ خراب کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر تھا نا ٹی ایل پی کا معاملہ، پولیس کہاں کہاں سے آئی تھی؟ اسلام آباد سے بھی پولیس آئی تھی، اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اور جب اسلام آباد سے بھی پولیس آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر پائی۔ پنجاب حکومت نے، یعنی وفاقی حکومت کے خلاف، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کے خلاف کوئی احتجاج ہونے دیا۔ تیسری، میں آپ کو بربنائے اطلاع بتا دوں کہ وفاق اور صوبہ پنجاب وہ ایک پیج پہ نہیں رہے، ان کے درمیان فرق پیدا ہو چکا ہے۔ اور آپ کے خود بڑے اچھے دوست ہیں جن کے کئی آپ نے انٹرویوز کر رکھے ہیں اور حکومت میں وزیر بھی ہیں، وہ ایک واحد رابطہ رہ گئے ہیں۔ جی، بڑی خبر دے رہے ہیں آپ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب میں اس وقت فرق ہے؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا بڑے میاں اور چھوٹے میاں کے درمیان کیا فرق ہے، میں آپ کو اپنے سٹرکچرل بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی وزیر ہیں حکومت کے جو اس وقت پنجاب سے رابطے میں، اور آپ دیکھ چکے ہیں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ خواجہ آصف صاحب جی کھول جی، کے سامنے آئے، فارغ ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ خود پی ایم ایل این کے اندر رینکس اینڈ فائلز جو ہیں وہ اس طرح ایک پیج پر نہیں رہے جس طرح انہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا پہلا فرق یہاں پہ آ گیا۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو فرق ہے، میں اس کو، یا ان کے درمیان جو ایک چھوٹی موٹی وہ چلتی رہتی ہے، میں اس کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس چھوڑنے کا چارہ ہے نہ ان کے پاس چھوڑنے کا چارہ ہے۔ ایکچولی اس سسٹم کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ باہر کی یعنی ایک غیر سیاسی قوت کے زور پر کھڑا ہوا ہے، اس کو اندر سے خطرہ ہے، تو لہٰذا وہ اندر کے خطرات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ وہ اب بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن سر، ہم نے تو خود دیکھا، مرید کے ہے، اس سے پہلے لاہور میں راوی پل پر شروعات ہوئی آپریشن، تو پنجاب پولیس نے کیا ہے، مرید کے کہاں وفاقی حکومت؟ چلیں اگر مان لیتے ہیں اسلام آباد سے کوئی نفری آ گئی، لیکن نفریاں شیخو پورہ سے بھی آئی ہیں، ارد گرد کے اور شہر تو پنجاب کا ہی ہے، پنجاب کے آئی جی نے جا کے سارا لیڈ کیا، تو ہم یہ کیسے، یہ بڑا صاف نظر آ یہ رہا آپ نے آئی جی پنجاب کی بڑی دلچسپ بات کی۔ آئی جی پنجاب صاحب کے بارے میں کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں وہ کس کو جواب دیں؟
आजी पंजाब साहब के बारे में तो एक तासुर ये है ना जी कि वो बहुत ताकतवर हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि मतलब उनकी ताकत बाज़ औक़ात कहीं से कहीं निकल जाती है, और सबको पता है कि उनकी ताकत के असबाब क्या हैं। जब बरह रास्त आईजीपी को इस्तेमाल करना पड़ जाए, उसके बाद दूसरी तरफ से इस्लामाबाद से फोर्सेस आ रही हों, तो उसका क्या मतलब है? और इसका पूरे की ज़िम्मेदारी जो मुतासरीन हैं वो तो डाल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब पे। अब पता नहीं मोहसिन नकवी साहब ने किया है नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन एक पॉलिटिकल बात जो हो रही है वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी, और शायद किसी दर्जे में आप यूं कह सकते हैं कि चूंकि वजीर दाखिला वो हैं, तो इस तरह से मामलात वो निपटा रहे हैं। तो अब आप ज़रा देखिए ना कि ये सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। इसको इस तरह भी तो ले सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब की और नून लीग की सुलह भी करा लेते हैं, कराची भी चले जाते हैं, वो भी उनकी कोई डोमेन थोड़ा ही है, वो कर लेते हैं, शहजादे आदमी हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की सुलह तो उस वक्त होगी ना जब इनमें लड़ाई होगी, चलो जो ठीक है ना, वो इनके तो लड़ाई है ही नहीं। देखिए आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को अब आप जुदा जुदा नहीं देख सकते। इन दोनों के दरमियान कोई इनफरादी फ़र्क हो तो हो, इसके सिवा इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। आप उसको अलग अलग देख नहीं सकते। मतलब वो कौन सा ऐसा इशू है जिस पे आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो तफरीक का ख़त है वो खींच सकते हैं? वो तो पता ही नहीं है। तो लिहाजा इन दोनों जमातों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, ना इनके तर्ज़ हुकूमत में फ़र्क रहा है। एक ज़माने में पीएमएलएन के तर्ज़ हुकूमत में फ़र्क होता था, ना इनके तर्ज़ हुकूमत में फ़र्क है, ना तर्ज़ फ़िक्र में फ़र्क है, ना इनके रुख में फ़र्क है। ये एक ही रुख में एक ही इमाम की इक़्तिदा में बिल्कुल साथ साथ कंधा जोड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये इधर भी दोबारा बात करते हैं 26वीं तरमीम जो है, ये केस जो चल रहा है, किसी वक्त हमें लगता है, मैं इस पे चेक भी किया, खुद एक वीडियो भी की, बहरहाल जजेस के कुछ रिमार्क्स ऐसे हैं, पता नहीं लगता है कि उनके दिलों में तो ये है कि ये गलत काम हुआ है। 26वीं तरमीम को कोई सेन आदमी ठीक कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने आपके विफाक का ढांचा तबाह करके रख दिया, बिलखुसूस अदलिया का। जब अदलिया की खुद मुख्तारी आपने गिरवी रख दी है और काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा शख्स उस वक्त उसने अपनी निगरानी में ये काम होने दिया, तो उसके बाद अदलिया को समझ आ रही है, लेकिन अदलिया को खुद पे एतमाद पहले पैदा करना होगा, भरोसा बाद में आएगा लोगों का। वरना इससे पहले बड़े बड़े हमने भी सारे ये सुने हैं, ये जितने जज साहिबान हैं, ये जो आइनी बेंच में, इसी बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फैसला उड़ाया था ना, इसी बेंच ने इस हुकूमत को जो इसकी नशिस्तें नहीं बनती थी वो दी थी ना, इसी बेंच ने फौजी अदालतों को जवाज़ दिया था ना। तो अब ये बेंच जो है अचानक आप कहेंगे कि जनाब इसमें कुछ तब्दीली आ गई, भाई वो आएगी, पहले आप अपना अब खुद पर आपको एतमाद होगा तो फिर लोगों का भरोसा भी आप पे आ जाएगा। अच्छा, अली अमीन गंडापुर भी चल ही रहे थे, तो क्या है, जैसे एल अफरीदी क्या कर लेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब जब आए थे तो उस वक्त जो एक अमूमी तवक्को थी कि चूँकि एक इलेक्शन पीटीआई ने जीता है और एक आइनी ढांचे के अंदर मौजूद है, और इस आइनी ढांचे में मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएंगे। और आपने ज़रा देखा कि पिछले साल डेढ़ साल में कई जगह अफ़ाम व तफ़हीम की कोशिशें भी हुई। अगस्त 2024 में एक जलसे की बात हुई, उसके बाद फिर अक्टूबर का, फिर नवंबर में आके जब लोगों को गोलियां लगी, तो एक्चुअली दैट वाज द टाइम जब सारी चीज़ों पर एक दफ़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो दरअसल 26 नवंबर वाज द डे जब अली अमीन गंडापुर साहब की रुखसती का फैसला हो गया। अली अमीन गंडापुर पे एतराज़ नहीं है। देखिए हर जगह के लिए एक ख़ास फ़र्द चाहिए, क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेटर चाहिए, फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉलर चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो तर्ज सियासत था वो नताइज पैदा नहीं कर पाया। तो अब आप ज़रा देखिए कि ये सिर्फ सुहेल आफरीदी नहीं आए, उससे पहले 3 काम भी हुए। वो 3 काम ये हुए हैं कि कायमा कमेटी जो कौमी असम्बली और सेनेट की, कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली की, ये तीनों काम हुए हैं यके बाद दीगरे, कि वहाँ से इस्तीफ़े दिलवा दिए गए। और फिर उस आदमी को आगे लाया गया है जो कहता है, जिसने शुरू तकरीर यहाँ से की है कि मैं एहतजाज का चैम्पियन हूँ। तो अब आप अंदाज़ा कर लें, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह अफ़गानिस्तान के ऊपर और फिर बातें तो सर गंडापुर साहब भी करते थे। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, पहले हालात कुछ और थे।
गंडापुर साहब की नेचर कुछ और है। गंडापुर साहब प्रॉबली बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, प्रॉबली बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर थे। वो मैं सिर्फ ठीक आपको फ़र्क वाज़े करने के लिए खेलों की मिसालें दे रहा हूँ, वरना गंडापुर में तो कोई, गंडापुर ने एक दबंग अंदाज में तहरीक आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन दो जगह उनकी जो तहरीकें हैं जिस तरह वो नाकाम हुई और अब्रप्टली ख़त्म हुई, तो उससे फिर एक सवाल या निशान तो उठता है ना। तो शायद उससे ये है कि इससे आगे आपको और ये बात समझिए, सियासत में हर बंदे से एक जैसी तवक्को नहीं होती। अब साथ रखते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स में। तो ये जो अब सोहेल आफरीदी साहब हैं, ये एक ज़रा ज़्यादा तीखे होके आएंगे। अच्छा, दोबारा आते हैं दोबारा टीएलपी पे। माजी में तो उनको कोई ना कोई आंख कोई मारता था, तो अब वो खुद ही आ गए हैं। देखिए, ये वो एक इस वक्त मैं ये बात नहीं करना चाहता। उसकी वजह है कि एक जमात सदमे से गुजर रही है, उसको अपने कायद का पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, सुना ही है कि वो ज़ख्मी हालत में है। इसके अलावा कारकुनों, उनके कारकुन अपनी जान हार गए हैं, वो कितने हैं अभी तक ये भी पता नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब ये बात, अगर ये एहतजाज चल रहा होता तो मैं ज़रूर इस पे आपकी बात का जवाब देता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस पे ये इंसानी जानों से कीमती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, लास्टली अब जो हुकूमत है जो नज़र नहीं आ रही, जो नहीं है और जाने वाली है, तो वो तो सब कुछ कर रही है, क्या कर तो रही है? जाने वाली कब होगी? क्या कर रही है? शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनल लीडर बने हैं। आप ज़रा देखिए, पाकिस्तान की सियासत में पिछले 1.5 साल के जो सारे वाक़यात हैं, जो सियासी वाक़यात हैं, वो तो अपोजिशन के पैदा करते हैं। इस हुकूमत ने क्या पैदा किया? वो सारे सियासी वाक़यात बर्पा ही अपोजिशन ने किए हैं। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। आपके ख्याल में इन्होंने 26वीं तरमीम करा ली? तो ये तो अब ये हुकूमत जो है, मेरा अंदाज़ा है कि अब इसका काउंट, अब मुझे इस हुकूमत के जो ये वाला साल का बाकी हिस्सा है, काफ़ी मुश्किल है इसके लिए। अच्छा, तो 2-3 महीने मुश्किल में यही है, साल में 2-3 महीने नहीं, मुश्किल तो इसकी रहनी है, मुश्किल तो में तो ये रहेगी, लेकिन जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल, वो अब है। नहीं तो पंजाब में तो मरीम नवाज़ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इतने वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, तो आप कह रहे हैं ये 2 महीने भी मुश्किल है? मैं मरीम नवाज़ की किसी भी अच्छी बुरी चीज़ पे बात नहीं करना चाहता। नहीं, पंजाब हुकूमत की बात हो। नहीं, मैं एक फेयर इलेक्शन के ज़रिए जो हुकूमत आई हो उसकी कारकर्दगी पे बात होती है। अच्छा, इतना ज़्यादा आप उनको कुछ कमेंट तो करें। नहीं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, कारकर्दगी उन हुकूमतों की देखी जाती है जो किसी फेयर इलेक्शन के नतीजे में वजूद में है, ताकि आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकें, अदरवाइज नहीं। और ये बड़ी आप पहली दफ़ा आगे आप कहते थे मैं टाइम नहीं बताता, लेकिन आप पहली दफ़ा कह रहे हैं कि 2-3 महीने भी मुश्किल है। मुझे मुश्किल लग रहे हैं इनके वाक़यात की जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जाएगी अब। तो मियाँ साहब फिर लंदन की टिकट करा लें। वैसे तैयार ही होंगी है। हाँ, उनकी तैयारी, उन्हें कौन सा मसला। मियाँ साहब ठीक है, खुश रहे, जा रहे हैं, पोतों से खेले, बच्चों से खेले, वो ठीक है, उनका अब कोई किरदार नहीं। इधर भी वर्ल्ड सिटी को देख ही रहे थे। अब वो वहाँ पे, वो लंदन में भी, वर्ल्ड, लंदन और लाहौर में यही मुमासलत है ना। वो ठीक है, वर्ल्ड सिटी देखें, मैं बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देखें, सैर करें, अच्छी बात है। और जरदारी साहब साथ ही हैं इनके, आप कह रहे हैं कि एक ही बात है, इकट्ठे ही जाना है ना। हाँ हाँ, इनका, आप इनके दरमियान, इन्होंने, इनका नसीब भी इकट्ठा हो गया, इनका सब कुछ इकट्ठा हो गया। जी, हबीब साहब अपनी बात पे कायम तो हैं ही हमेशा, जो पीछे कुछ अरसे से, लेकिन आज आगे भी बात बढ़ी है कि पहली दफ़ा उन्होंने ये भी बता दिया कि ये 2-3 महीने साल के, और ये भी सियासत मुश्किल जो होती है, जी। सियासत जो होती है वो, अगर आप, पाकिस्तान के अंदर 2-3 महीने बड़ा लंबा अरसा होता है, ठीक है ना। अगर इस हुकूमत के अंदर स्ट्रेंथ पैदा हो गई तो मैं फिर आपके साथ बैठ के बताऊंगा भी अब इसमें स्ट्रेंथ पैदा हो गई। तो लिहाजा अब हमने देख लिया, बड़े क्लियर हैं, और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड बात करते हैं, ये वो एवं तज्जिया कार नहीं है, ये पक्के सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों वाली बात करते हैं। ज़ाहिर है बताएंगे नहीं अपने सोर्सेज, तो वो हम भी नहीं बताते, लेकिन इनकी काफ़ी बातों से
ہمارے بھی اطلاعات کچھ اسی طرح کی ہیں. تو اسی لیے جب ہمیں نظر آتا ہے کچھ ایسا چیز ہے خاص تو اس کو مزید کہہ لیں کہ پکا کرنے کے لیے حبیب صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں انشاءاللہ. اسی کے متعلق کچھ عرصے بعد دوبارہ ان سے پوچھیں گے اور اپڈیٹ لیں گے. تھینک یو.